हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका's कोलैबोरेटिव लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू बिगिन विद अ ब्यूटीफुल कोट। इफ यू विश टू गेट रिच, save what you get. A fool can earn money, but it takes a wise man to save and dispose of to his own advantage. It was said by Brigham Young. This quote is nothing but a practicality of our own lives. See, whatever we earn, if we are not saving it, we don't have money to face our future contingencies. But if we save what we are having, we will be having money to save, to spend what will come in future. For example, if you meet with a medical contingency in future, if you meet with an accident, if you want money for education, if you are not saving it, you will not get money in future. That's why savings are very important. We have been taught by our parents to save money in gullaks, piggy banks. Why? Because they inculcate the habit of savings from our childhood. Okay, so saving is very important. This lecture is regarding saving only. How? Let's see. There are three kinds of people: poor people, the middle class, and the rich man. Okay, so this poor man is earning just 5,000 rupees a month. Middle class man is earning 25,000 rupees a month, and the rich man is earning 2,50,000 a month. They all are doing some kind of work and are employed in some kind of sectors. Okay, maybe tertiary, maybe secondary sector, or maybe primary sector. Okay, so this poor man is not having anything at the month end to save. This middle class man is also not having anything to save, and this rich man is also not having anything to save. Why? Because their needs are not getting fulfilled. This poor man, how much he will get in 5,000? How will he save his entire grocery needs, family needs, educational needs? This 5,000 is very less for his needs also. Taking the case of middle class man, he is earning just rupees 25,000. For him, his necessities are more than 25,000 and he has to fulfill them anyhow. He has to choose between his wants. So he is also not saving any kind of money. The rich man, on the other hand, is having 2,50,000 rupees. Still, he is not saving anything. Why? Because as we have more and more money, our wants become bigger and bigger. Economics concepts: humans have unlimited wants, but resources are limited. So rich man is also not saving anything. So what happens in future? This middle class man was coming back from office, and here he fell down and he met with an accident. While he met with an accident, a lady approaches and takes him to the hospital. The hospital bills were 11,000 and he has not saved anything for his future. So what this man has to do, he has to borrow 11,000 and give those 11,000 back to the lady who helped him in getting recovered. So where did he got this 11,000? He borrowed this money from one of his friend. Now, later on, his friend is asking him, give my money back, 11,000. Now he is saying, I haven't saved. In a month or two, I will save and repay you. Okay. So, these all three people are not saving. Similarly, we don't save for our future contingencies. Some people do, so they are wise men as per the quote, and some people not do. So they all are fools because saving is a necessity. So for those people who don't save this money, like this middle class man, rich man, and the poor man, government has taken an initiative. What initiative government has taken? Whatever you will earn, I will tell you how to save. Okay. Employer will also contribute, you will also contribute into a small piggy bank that is called Employee Provident Fund Act 1952. In Employee Provident Fund, fund means accumulation of money. Okay. So in Provident Fund, we both will save money, who we both, employer and employee, and together that money will be used after superannuation, retirement, or whenever there are cases for withdrawal. There are different times when we can withdraw money also. So that money will be used for future contingencies. So this step was taken by government.
So I hope you have understood what is the concept of EPF Act, why it came into picture. It came because people were not saving money, and money is important for the future contingencies. So government has taken this initiative so that as per the mandatory rules of the government, people have to save it. If yes, if even if whatever happens, because it is a rule, it is a law, people cannot override the law. What is written in law is mandatory for the people who are employed. Okay, if they want to save money, they will have to contribute towards PF. Let's see how. Employee Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 is a social welfare legislation to provide for the institution of Provident Fund, Pension Fund and Deposit Linked Insurance Fund for employees working in factories and other establishment. तो देखते हैं Employee Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952. In this act, there are three schemes: Employee Provident Fund Scheme, Employee Pension Scheme, Employee Deposit Linked Insurance Scheme. Now, this Provident Fund scheme will be helpful for employee in facing future contingencies like medical, house construction, marriage, etc. He can withdraw money for these purposes also. Now, this pension scheme is not only for the employee plus the future of his family, who can take advantages of this money after the employee dies. अब लेते हैं केस एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम का. इन दिस स्कीम व्हाट हैपेंस, जो भी इंश्योरेंस बेनिफिट्स होते हैं, एम्प्लॉयज को जो इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलते हैं वो इस स्कीम के अंदर दिए जाते हैं. एक स्पेसिफाइड रेट है जिसको फॉलो करना पड़ता है एम्प्लॉयर को, और वो पैसा जमा होता है टोटल मिला के ईपीएफ अकाउंट में. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत जो अकाउंट है 1952 वाला जो एक्ट है जिसमें अकाउंट है, उसमें ये पैसा जमा होता है. ये एक छोटी सी गुल्लक जैसा समझ लीजिए कि आप पीएफ का पैसा होता है, जो एम्प्लॉय होता है वो जो कंट्रीब्यूट करता है उतना पैसा छोड़ के बाकी का एम्प्लॉय को इन हैंड सैलरी मिलती है. जैसा कि आपको पता होगा, लोग बोलते हैं कि कट पिट के मुझे इतने रुपए मिलते हैं, उसका मतलब क्या है कि पीएफ कट के उनको इतने रुपए मिल रहे हैं. तो पीएफ के साथ साथ ये तीन स्कीम्स इंक्लूडेड हैं. Isn't it good government is taking such a great initiative to protect the lives of not only employees but also their family in the form of pension fund and providing for insurance also. So this act aims at providing what? Social security and timely monetary assistance to industrial employees and their families when they are in distress, when in need. Okay. The following three schemes have been framed under the Act by the central government. Who framed these schemes? Central government. Employee Provident Fund Scheme 1952, Employee Pension Scheme 1995, Employee Deposit Linked Insurance Scheme 1976. Taking the case of applicability, where this act is applicable. Is this applicable to whole of India? क्या ये पूरी इंडिया पर applicable है? नहीं, ये पूरी इंडिया के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर पर और लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाली यूनियन टेरिटरीज पर भी एप्लीकेबल है. ट्रिब्यून न्यूज सर्विस जम्मू नवंबर 19 का ये न्यूज लेटर है. चलिए देखते हैं कि ये न्यूज लेटर क्या बोलता है. ट्रिब्यून न्यूज सर्विस जम्मू नवंबर 19. सेंट्रल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 will now cover workers in the two newly carved union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh after the bifurcation of erstwhile state of Jammu and Kashmir on August 5. Central Act will now replace the Jammu and Kashmir EPF Act schemes 1961 which now cease to exist. मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर का जो 1961 वाला एक्ट था अब वो खत्म हो चुका है. उसके बदले में अब जो ईपीएफ के प्रोविजंस हैं, ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, ये वाला जो एक्ट है, दिस विल बी एप्लीकेबल on the union territories, newly carved union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. So this act is applicable to Jammu and union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh and whole of India. So we can say that yes, it is applicable to whole of India, including the two newly carved union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh.
under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji and supervision of Union Home Minister Shri Amit Shah ji, the former state of Jammu and Kashmir has been recognized as new Union Territory of Jammu and Kashmir and new Union Territory of Ladakh on 31st October 2019. तो ये आपके एग्जामिनेशन से 6 मंथ्स पहले की अमेंडमेंट है, तो आपके एग्जाम में जरूर आ सकती है MCQ फॉर्म में. Applicability to every establishment which is a factory engaged in any industry is specified in Schedule 1 and in Schedule and in which 20 or more persons are employed. तो देखते हैं कैसे. To every establishment, हर वो establishment जो कि फैक्ट्री है और वो किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, engaged in any industry, for example ऑटोमोबाइल्स है, तो कोई फैक्ट्री है जो कि ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करती है और वो शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड है, जहां पर 20 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, ये एक्ट वहां पर एप्लीकेबल है. कोई और एस्टैब्लिशमेंट जहां पर 20 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, विच द सेंट्रल गवर्नमेंट पे बाय नोटिफिकेशन, मतलब कि जो शेड्यूल 1 में लिस्टेड नहीं है, उन ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है, तो उन पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल है. पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में उसके बारे में लिखेगा कि वो कौन सी फैक्ट्रीज हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज है जिन पर ये एक्ट एप्लीकेबल है. बस एक चीज का ध्यान रखना है, वहां पर 20 या उससे ज्यादा लोग काम करने चाहिए, एम्प्लॉयड होने चाहिए. Central government may apply the provisions of this act to any establishment employing such number of persons less than 20 as may be specified in the notification. Not less than 2 months notice is to be given by central government to such establishment. इस पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम्प्लॉय काउंट 20 से कम है, उन पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ये एक्ट एप्लीकेबल कर सकता है. 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा कि ये एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल है. कौन नोटिस देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस देगा उन एस्टैब्लिशमेंट पर जहां पे वो एप्लीकेबल कर रहे हैं इस एक्ट को, जहां पर 20 से कम कर्मचारी हैं. Where it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and majority of the employees have agreed that the provisions of this act should be made applicable to their establishment, he may by notification apply the provisions of this act to that establishment on and from the date of such agreement or from any subsequent date specified in such agreement. अगर सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को लगता है कि जो एम्प्लॉयर है और मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो चाहते हैं कि ये एक्ट उनकी ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल हो, तो सबको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, सबसे पूछेगा कि आप क्यों चाहते हो कि ये वाला एक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल हो, और उसे यदि सब सही लगता है तो वो एक नोटिफिकेशन द्वारा बता देगा कि ये एक्ट अब आप पर एप्लीकेबल है, और उस नोटिफिकेशन में जो अग्रीमेंट बनेगा उस डेट से वो एक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है. आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, once this act is covered it shall continue to apply notwithstanding the number of persons employed therein shall at any time falls below 20. अगर एक बार एक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी स्टैब्लिशमेंट पर एप्लीकेबल हो जाता है तो वो हमेशा ही एप्लीकेबल रहेगा, भले ही एम्प्लॉय काउंट 20 से कम हो जाए. तो ये रही एप्लीकेबिलिटी की बात. आगे बढ़ते हैं. 3 केस लॉस हैं. देयर आर 3 केस लॉस इन गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल वर्सेस EPF ऑर्गेनाइजेशन. इस केस लॉ में क्या हुआ? इट वाज हेल्ड दैट school rightly covered under PF Act when the principal has affirmed about employment of 20 employees. एक स्कूल है जहां पर PF Act एप्लीकेबल होता है. कैसे? क्या स्कूल एक एस्टैब्लिशमेंट है जिस पर PF Act एप्लीकेबल होना चाहिए? लॉ बोलता है यस. इट वाज डिसाइडेड इन केस गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल वर्सेस EPF ऑर्गेनाइजेशन. प्रिंसिपल ने जब डिक्लेयर कर दिया कि हमारे यहाँ 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, 20 या ज्यादा टीचर्स हैं, हमने एम्प्लॉय करके रखे हैं, तो ये एक्ट हम पर एप्लीकेबल होना चाहिए, तो वो केस जीत जाते हैं. यहाँ पर ये डिक्लेयर होता है कि यस, स्कूल इज कवर्ड अंडर EPF. ओके. दूसरा केस लॉ इन मेसर्स नसीरुद्दीन बीडी मर्चेंट लिमिटेड वर्सेस CPF कमिश्नर. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट
Act would apply even in respect of home workers engaged through contractors and cannot be objected anymore. समझते हैं इसको। देखिए, एक कंस्ट्रक्शन हो रहा था एक प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हो रहा था जिसमें बिल्डिंग बन रही थी। अब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारे कर्मचारियों की जरूरत थी। तो ये जो बिल्डिंग का ओनर था इसके पास कर्मचारियों की डिटेल्स नहीं थी, मतलब जो भी वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट होते हैं he was not having any details of those people, so he contacted a contractor. So this contractor was ready to give him employees also, plus a full-fledged contract-based construction also. So these employees were of the contractor, not of the the building owner. So if this is the case, when the employees are employed through contractor, then also this act would be applicable. Okay. So this act is applicable even in respect of home workers engaged through contractors and cannot be objected anymore. In Annamaliyap versus Regional Provident Fund Commissioner, it was held that where in an establishment the strength of employees at a particular time is below 20, it cannot be contended by the employer that the establishment is no longer within the purview of the act. अगर कोई establishment में कभी फ्यूचर में एम्प्लॉय काउंट 20 या उससे कम हो जाता है तो एम्प्लॉयर ये नहीं बोल सकता कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 20 से कम एम्प्लॉयज हो गए हैं तो अब मेरे यहाँ पर एक्ट एप्लीकेबल नहीं है. सो दिस हैपेंड इन द केस ऑफ Annamaliyap versus Regional Provident Fund Commissioner. I hope you will remember this case laws as it can come in exam. Moving forward, non-applicability of the Act. Section 16, subsection 1. This Act is not applicable to any establishment registered under Cooperative Societies Act 1912. ये Act उन एस्टैब्लिशमेंट पर एप्लीकेबल नहीं है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर कवर होती है, या फिर ऐसी कोई एस्टैब्लिशमेंट जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जहां पर 50 लेस देन 50% एम्प्लॉयड हैं और वो काम कर रहे हैं विदाउट द एड ऑफ पावर, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की कोई फैसिलिटी नहीं है. सो दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एस्टैब्लिशमेंट अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 or in any state relating to cooperative societies employing less than 50% who are working without the aid of power. This act is not applicable to them. To any other establishment belonging to or under the control of central government or state government and whose employees are entitled to benefit of contributory provident fund or old age pension in accordance with any scheme or rule framed under central government or state government. तो ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स जो सरकारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, तो उनके एम्प्लॉयज को तो गवर्नमेंट खुद ही बेनिफिट देगी. कॉन्ट्रीब्यूटरी पीएफ और ओल्ड एज पेंशन में उनको ऑलरेडी बेनिफिट्स मिले हुए हैं, तो ये एक्ट उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है. गवर्नमेंट ने ये एक्ट उनके लिए एप्लीकेबल इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको डबल बेनिफिट मिल जाएगा. टू एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट सेट अप अंडर सेंट्रल, प्रोविजनल एंड स्टेट एक्ट whose employees are entitled to the benefits of contributory provident fund or old age pension in accordance with any scheme or rule framed under the governing such benefits. तो जो establishment सेंट्रल, प्रोविजनल और स्टेट एक्ट के अंडर आती हैं, जिनके एम्प्लॉयज को ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूटरी पीएफ और ओल्ड एज पेंशन के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सेम इसके जैसा ही है, बस अथॉरिटी चेंज है, तो उनको भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. मूविंग फॉरवर्ड, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ने जा रहे हैं जो इस एक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए defines the term appropriate government in relation to an establishment belonging to or under the control of central government or in relation to establishment connected with railway company, major port, mine, controlled industry, in relation to establishment having departments or branches in more than one state. The appropriate government is central government, and in any other establishment the appropriate government is state government. तो जो भी establishments सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ रही हैं या फिर वो रिलेटेड हैं रेलवेज, मेजर पोर्ट, माइन, ऑयल फील्ड, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री से,
तो उस केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और इसको छोड़ के बाकी सारे केसेस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी। Authorized officer, section 2AA, define the term authorized officer as कौन कौन authorized officer हैं? Central Provident Fund Commissioner, Additional Central Provident Fund Commissioner, Deputy Provident Fund Commissioner, Regional Provident Fund Commissioner, या और कोई ऑफिसर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन द्वारा ऑफिशियल गैजेट में मेंशन करके अपॉइंट किया हो, तो वो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर कहलाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, बेसिक वेजेस क्या क्या होंगे इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए? सो बेसिक वेजेस आर ऑल emoluments which are earned by employee while on duty or on leave or on holidays with wages in either case in accordance with the terms of the contract of employment, which are paid or payable in cash to him but does not include cash value of any consideration, any DA, that is to say all cash payment whatever name called paid to an employee on account of rise in the cost of living, HRA, overtime allowance, bonus, commission or any other similar allowances. So basically these all are not included in basic wages. Any presents, if employer is giving any gifts etc., are not included in basic wages. It is stated in section 2 subsection B of the act. Contribution defines the term contribution as a contribution payable in respect of a member under a scheme or the contribution payable in respect of an employee to whom the insurance scheme applies. अब contribution कौन करेगा, कैसे गुल्लक में पैसा इकट्ठा होगा? So for example this is your PF. For example this is your PF in which the money is being stored. Okay, in this PF account, employer will also contribute and employee will also contribute. How much they will contribute, we will look at it. And afterwards, when the time arrives, they will take this amount and this will be beneficial for employees' benefits, future benefits. Okay, so contribution not only involves the employer's contribution but also employees' contribution. Both the contribution makes the provident fund. Provident fund means accumulated fund, a pooled fund. Fund, it means provident fund established under the scheme. It is defined under section 2 subsection H. Now who is the employer? In relation to establishment which is a factory, अगर कोई establishment है जो कि फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री का जो ओनर होगा वही जो होगा एम्प्लॉयर होगा, या फिर उस फैक्ट्री का जो ऑक्यूपायर होगा वही एम्प्लॉयर होगा। यदि फैक्ट्री का मालिक कहीं और रहता है और उसने किसी और पर्सन को एज अ एजेंट वहां पे छोड़ के गए हैं कि आप देख रेख कीजिएगा, तो वो एजेंट उस समय पे क्या होगा, एम्प्लॉयर होगा, इंक्लूडिंग द एजेंट ऑफ सच ओनर। और ऑक्यूपायर, अगर ऑक्यूपायर भी किसी एजेंट को अपॉइंट करके जा रहा है तो वो भी एम्प्लॉयर होगा। यदि मेन ओनर की डेथ हो चुकी हो तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड ओनर और ऑक्यूपायर विल बी द एम्प्लॉयर। जहां पे किसी को मैनेजर अपॉइंट किया हो तो वो मैनेजर ही एम्प्लॉयर होगा। इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो कि फैक्ट्री नहीं है। तो पर्सन हु हैज अथॉरिटी, मतलब ऐसा इंसान जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ अफेयर्स हो, मतलब सारा काम वह खुद देखता हो, तो वो उस केस में वो इंसान ही क्या होगा, एम्प्लॉयर होगा। तो मैनेजर भी हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है, मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजिंग एजेंट हो सकता है। तो वो सारे केसेस में वो एम्प्लॉयर कहलाएगा क्योंकि उसके पास क्या है, अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ अफेयर्स। मूविंग फॉरवर्ड, एम्प्लॉय कौन है? डिफाइंस द टर्म एम्प्लॉय एज एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस। हर वो इंसान जो कि वेजेस इन एनी काइंड, चाहे वो कैश में लो चाहे काइंड में लो, चाहे आपका काम मैनुअल हो चाहे सर्विस वाला काम हो अदरवाइज, और इन कनेक्शन विद द वर्क और एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए किसी काम के लिए आपका काम हो, जो कि वेजेस डायरेक्टली मिल रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली मिल रहे हैं एम्प्लॉयर द्वारा। इनडायरेक्टली कैसे मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्टर वाले केस में। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन employed by or through a contractor or in connection with the work of the establishment engaged as an apprentice। पर वो जो apprentice अपॉइंट हुआ वो इंक्लूड तो होगा,
पर वो अप्रेंटिस इंक्लूड नहीं होगा जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 में स्टेटेड है और अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। प्रकाश डी शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, in high court it was held that partner of a firm having status of a beneficiary will not be employed either to be covered or counted under this act। मतलब कि जो पार्टनर है और वो लॉसेस के लिए प्रोवाइड नहीं कर रहा, सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स ले रहा है किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो वो एम्प्लॉय नहीं कहलाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी। Factory defines the term factory as any premises including precincts thereof। देखिए, ये मान लीजिए एक फैक्ट्री है, बिल्डिंग है जहाँ पे कुछ कुछ बन रहा है और ये फैक्ट्री के आजू बाजू में ये सारी जगह हैं और ये पूरा का पूरा जो स्पेस है ये एक एनक्लोज्ड बाय वॉल्स है, पर यहाँ पर भी जगह है, यहाँ पर भी जगह है, सब जगह काम हो रहा है और ये सारा एक बिल्डिंग तरह का बना हुआ है। तो ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, तो ये पूरी की पूरी फैक्ट्री कहलाएगी। ये वाली जगह भी, ये वाली जगह भी और ये सारे प्रेसिंक्ट्स भी। ओके, पर एक ही कंडीशन है, ये जो फैक्ट्री है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन नहीं हो रहा है तो वो फैक्ट्री नहीं है, चाहे आप वहाँ पे पावर का यूज करो चाहे नहीं करो, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे आप मैनुअली लेबरर से वर्क करा रहे हो। फैक्ट्री में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन होना चाहिए, तभी वो फैक्ट्री कहलाएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन जी, ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट्री। सेक्शन 2 सबसेक्शन के, ऑक्यूपायर कौन होता है? जिसके पास क्या हो? अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ अफेयर्स हो। अभी हमने देखा था पिछले स्लाइड्स में, ऑक्यूपायर इज अ पर्सन who has ultimate control over the affairs of the organization। Moving forward with two case studies. In Shrikant Datta Narasimhawara Vodiyar versus Enforcement Officer Mysore, it was held that the person who is in charge or responsible for the management or ultimate control over the affairs of the factory or establishment in the event of entrustment or to a managing agent, such managing agent shall also be deemed to be the occupier। इस केस में ये हुआ था कि जो ओनर है वो फॉरेन में रहता था, तो उसने किसी मैनेजिंग एजेंट को एज अ मैनेजिंग एजेंट अपॉइंट करके गया था। तो वो जो मैनेजिंग एजेंट है, कोर्ट ने डिक्लेयर किया, एनफोर्समेंट ऑफिसर मैसूर ने डिक्लेयर किया कि दैट मैनेजिंग एजेंट विल ऑल्सो, जो कोर्ट है वहां पे डिक्लेयर हुआ कि वो मैनेजिंग एजेंट भी ऑक्यूपायर कहलाएगा, क्योंकि ओनर तो था नहीं, ओनर ने उसे अपॉइंट करके गया था। तो अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ अफेयर्स किसके पास है? मैनेजिंग एजेंट के पास है। तो उस केस में ऑक्यूपायर कौन होगा? मैनेजिंग एजेंट ही होगा। इन बीके वासु वर्सेस रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, द हाई कोर्ट हेल्ड दैट क्लियर मीनिंग ऑफ ऑक्यूपायर इंडिकेट्स अ पर्सन हु इज इन एक्चुअल पोजेशन एंड कंट्रोल। It may be individual or a firm, unless notice is given notifying that individual of a firm, all members of the firm are to be liable। तो जो पर्सन है, जरूरी नहीं है कि वो एक ह्यूमन बीइंग हो, वो एक फर्म भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स। तो उसके लिए एक नोटिस देना पड़ता है कि जो फर्म, यदि कोई फर्म है वो ऑक्यूपायर है तो उनके सारे मेंबर्स लाइबल होंगे या नहीं, उस चीज के लिए एक नोटिस देना पड़ता है। This was stated in case BK Vasu versus Regional Provident Fund Commissioner। Moving forward, schemes, जैसा कि हमने देखा था 3 स्कीम्स होती हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। और सेक्शन 7 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स दी गई हैं कि वो इन स्कीम्स को अमेंड भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कुछ न्यू प्रोविजंस ऐड करनी हो तो वो ऐड भी कर सकते हैं। So section 5, employee provident fund scheme. This is the main topic. Please concentrate if you are watching this lecture। Employee provident fund scheme section 5 provides that central government framed a scheme called employee provident fund scheme for short, for the establishment of provident fund for employees। Central government framed employee provident fund scheme which came into effect from 2nd September 1952। Fund shall vest and shall be administered by central board constituted under section 5A of the act। क्या बोल रहा है लॉ? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम जो होती है सेक्शन 5 में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फ्रेम की गई है।
2 सितंबर 1952 को इट केम इनटू इफेक्ट। द फंड, जो भी फंड होगा, मतलब जो भी पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो भी एक्यूमुलेट हो रहा है, ये कौन एडमिनिस्टर करेगा, कौन इसकी देखरेख करेगा? सेंट्रल बोर्ड। तो ये सेंट्रल बोर्ड को पावर्स किसने दी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दी कि आप इस चीज को एडमिनिस्टर कीजिएगा। Central Board provides for the establishment of central board by the central government. It is stated in section 5A. The board consists of, अब बोर्ड में कितने कितने लोग होते हैं? एक चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इज एक्स ऑफिशियो। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इज एक्स ऑफिशियो, इसका मतलब क्या है? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑलरेडी अपॉइंटेड है, जो कि सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस की एडमिनिस्टर करने में एक पार्टी होता है जो कि एक्स ऑफिशियो होता है, मतलब कि उसकी पोस्ट के कारण वो यहाँ पर ऑफिसर बन गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कलेक्टर हूँ, अब मेरे को किसी टीम में लिया जा रहा है, क्योंकि मैं कलेक्टर हूँ तो मेरे आगे क्या लिख दिया जाएगा? एक्स ऑफिशियो, मतलब मेरे पास ऑलरेडी एक ऑफिस है और मेरे पास ऑलरेडी एक पोस्ट है और उसी पोस्ट के कारण मुझे इस चीज में इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भी उस सेंट्रल बोर्ड का हिस्सा होता है, पर वो एक्स ऑफिशियो होता है, मतलब कि वो केवल एक पार्ट होता है, पर उसका ऑफिस, उसकी अथॉरिटी सब अलग है। वो प्योरली सेंट्रल बोर्ड का मेंबर नहीं कहलाएगा। ही इज अ पार्ट मेंबर लाइक अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन। दे टेक डिसीजंस टुगेदरली। Members to this board are being appointed by the central government as per the provisions contained in section 5A. सेंट्रल गवर्नमेंट और भी मेंबर्स अपॉइंट कर सकती है, उसके बारे में लिखा गया है 5A में कि कैसे आपको क्या प्रोसीजर आपको अपनाना है अपॉइंटमेंट का और मेंबर्स को ऐड करने के लिए। सो बेसिकली देयर आर 3 मेंबर्स, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हु इज द एक्स ऑफिशियो। मूविंग फॉरवर्ड, section 5AA provides for the appointment of executive committee by central government to assist the central board in the performance of its function. अब सेंट्रल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए कोई और भी कमेटी की जरूरत थी, इसलिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 5AA में एक लॉ बनाया जिसमें बताया गया कि एक एग्जीक्यूटिव कमेटी अपॉइंट होगी। क्या करेगी एग्जीक्यूटिव कमेटी? असिस्ट करेगी सेंट्रल बोर्ड को, जिसमें वाइस चेयरमैन था, चेयरमैन था, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर था और भी मेंबर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5A के तहत अपॉइंट किए थे। तो उन सारे लोगों को वो असिस्ट करेगी, उनकी हेल्प करेगी, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में। मूविंग फॉरवर्ड, स्टेट बोर्ड, सेक्शन 5B। सेक्शन 5B में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स दी गई हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट के साथ मिलके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को कुछ पावर्स दे, वो एक्सरसाइज करे कुछ पावर्स, such duties as the central government may assign to it from time to time. So state government, यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट से और वो दोनों साथ में कुछ पावर्स बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को दे देते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं उन पावर्स को और मतलब कि पिक्चर में लाते हैं, उन पावर्स को इफेक्ट में लाते हैं, जो कि किसने दी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी स्टेट गवर्नमेंट से पूछकर, कंसल्ट कर कर। तो ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज वो सारे काम करेंगे जो ये लोग बोलेंगे, तो दैट इज अ स्टेट बोर्ड। बेसिकली बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इज अ स्टेट बोर्ड। तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज क्या होगा? स्टेट बोर्ड होगा। इनको ड्यूटीज कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किससे पूछ के ड्यूटीज दी? स्टेट गवर्नमेंट से। पूछा कि कंसल्ट किया? कंसल्ट किया। नेक्स्ट, सेक्शन 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन। कौन कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है? एम्प्लॉयर ओवरऑल 12 + 1 दैट इज 13% कॉन्ट्रीब्यूट करता है पीएफ में, और एम्प्लॉय कितना करता है? इक्विवेलेंट टू एम्प्लॉयर दैट इज 12%। अब ये 1% की क्या कहानी है देखते हैं। जो एम्प्लॉयर है वो पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है 3.67%, पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है 8.33%,
0.5% एम्प्लॉयर को एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और इंश्योरेंस के अमाउंट के लिए एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत उनको 0.5% टूवर्ड्स एम्प्लॉय इंश्योरेंस कंट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। और जो एम्प्लॉय है वो केवल 12% टू पीएफ कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन की पूरी चार्ट मैंने आपको दे रखी है, ठीक है। So how much does an employer contribute to PF? 3.67%. But how much does an employee contribute to PF? 12%. How much does an employer contribute to EPS, Employee Pension Fund Scheme? 8.33%. How much administration charges the employer is paying? 0.5%. And 0.5% to employee deposit linked insurance scheme. This all is stated in section 6 of the EPF Act. Okay. Let's take an example. Gross wages are, basic wages are 10,000, DA is 1,000, that is dearness allowance, HRA is 5,000. Total employees earning 16,000. Now, how much we will take for the contribution of PF? So, we will take only the basic and the DA. If there is any retaining allowance we can take, but in this case there is no retaining allowance. So, basic wages are how much? 10,000 and DA is 1,000. So, overall employee salary which is eligible for PF is basic wage limit which is eligible for PF is 15,000. Okay, but here in this case, in law they are saying if the employee is earning 15,000 or less, he is eligible for PF. And if he is earning more than 15,000 also, employer and employee togetherly can make that act applicable to them, or can enforce the provisions, or can take into picture the provisions of Provident Fund Act. So that is a very different scenario. Taking the case of this example, okay, don't get confused with 15,000 things, we will study it. Okay, taking the case of this thing, PF wages on which the PF will be applicable are 10,000 and 1,000. We are not taking HRA as it is not to be taken as per law. Only DA and retaining allowance can be taken. So 11,000 is our salary on which we will calculate the contribution to PF. So employee contribution is 12%. We read it. So how much is the 12% of 11,000? 1320. Employer contribution is 3.67% to EPF, that is 404 rupees. And now here in this case 8.33% employer contributes towards EPS, so 916 rupees. 0.5% he contributes towards insurance, that is 55 rupees, and another 55 he will pay the administration charges. Okay, so how much is the employer contributing? 1430. And how much is the employee contributing? 1320. How much will employee get in hand, get the salary in hand? 11,000 minus 1320. He will get it in hand. And togetherly, how much amount will go to the PF account? 1320 plus 1430 will go into the PF account, that is 2750 is the good luck which they have made for PF togetherly. So isn't it nice? Savings are happening because of law. We don't have to save on our own. We are spending. We are getting salary after the deduction of what we saved. So nice initiative taken by government. We should be proud of our country in which we are living. The laws abide us. The laws help us. All laws are not wrong. They are made for the people, benefit of the people, the society, to enhance the work culture. Let's move forward. Each contribution shall be calculated to nearest rupee. If the answer is coming in point, it should be calculated to nearest rupee. 50 paise or more to be counted as the next higher rupees. For example, if 0.6, it will be considered as 1. If 0.4, it will be considered as 0. Understood? So this is the basic criteria that calculation should be to nearest rupees. Dearness allowance shall include cash value of any food concession. Retaining allowance is allowance payable to employee for retaining his services when the establishment is not working. Like in this case, COVID establishment were not working, but still employees were retained. Okay,
so it is an allowance payable to the employees, that is also added. Provident fund scheme has made the payment of contribution mandatory. Even not only employer but the employee also has to mandatorily pay into the fund. Otherwise, penalty is there under section 14. And the act provides no exception under which a specified employer can avoid his mandatory liability. There is no exception to any person who can avoid payment to contribution. Now, what is the wage limit? The wage limit is paid up to a maximum of 15,000 by an employer and employee with effect from 1/9/2014. 1st of September 2014 notification. Wage limit is paid up to a maximum of only 15,000. If one has to pay, if one is earning a salary of more than 15,000, is he not getting PF? No, he can get a PF, but a joint request from employee and employer is required. In such case, employer has to pay administrative charges on higher wages. Okay, he has to pay administrative charges. How much is the percentage of administrative charges? 0.5% for accessing the facility of PF. मतलब कि अगर कोई कंट्रीब्यूशन, अगर कोई एम्प्लॉय है जो 15,000 या उससे कम रुपए कमाता है, तो उसके ऊपर तो ये एक्ट एप्लीकेबल है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस एम्प्लॉयर को पे नहीं करने पड़ेंगे। पर यदि 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉय कमा रहा है तो एक ज्वाइंट रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों देंगे, किसको? सेंट्रल बोर्ड को, तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पर भी वो एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। पर उसके लिए एम्प्लॉयर को 0.5% ऑफ द बेसिक वेज लिमिट जो भी होती है, जिसमें हम सैलरी, बेसिक वेजेस प्लस डियरनेस अलाउंस इंक्लूडिंग द कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन प्लस रिटेनिंग अलाउंस, उसका 0.5% जो होगा वो एम्प्लॉयर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पे करेगा। फॉर द इंटरनेशनल वर्कर, वेज सीलिंग ऑफ 15,000 इज नॉट एप्लीकेबल। इंटरनेशनल वर्कर के लिए ये वेज सीलिंग एप्लीकेबल नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्कीम। ये स्कीम सारी की सारी फैक्ट्रीज पर एप्लीकेबल है, पर टी फैक्ट्रीज जो कि स्टेट ऑफ आसाम में है वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये पैसा निकालना है, अगर पीएफ का पैसा निकालना है तो हम किन पर्पसेस के लिए निकाल सकते हैं? हाउस कंस्ट्रक्शन या फ्लैट के लिए अगर पैसा निकालना है तो निकाल सकते हैं। किसी लोन का रीपेमेंट करना हो तो आप निकाल सकते हो। आप कब निकाल सकते हो? 1 ईयर बिफोर द रिटायरमेंट। अगर एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयड है और उसका अनएम्प्लॉयमेंट को 1 महीना हो चुका है तो वो 75% ऑफ द बैलेंस पैसा निकाल सकता है। यदि वो 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं उसके अनएम्प्लॉयमेंट में या फिर 2 महीने हुए हैं तो वो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को जाके बता देगा कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो पूरा का पूरा पीएफ अमाउंट जो है वो निकाल सकता है, पूरा फुल विड्रॉल। सच विड्रॉल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रीपेड। अगर आपने एक बार पैसा निकाल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉय को वो पैसा वापस रीपे करना पड़ेगा। नो, कोई रीपेमेंट नहीं है। कैसे होगा? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यदि आपको चाहिए, फ्लैट के लिए चाहिए, एक्विजिशन ऑफ सुइटेबल साइट के लिए चाहिए, तो आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। कोई लोन को रीपे करना है, कब विड्रॉ करेंगे? 1 ईयर बिफोर द रिटायरमेंट। अगर रिटायरमेंट से पहले विड्रॉ करना है तो एक ही केस में विड्रॉ हो सकता है, वो केस होगा अनएम्प्लॉयमेंट। यदि आपकी जॉब चली गई है और अनएम्प्लॉयमेंट को 1 मंथ हो चुका है तो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की परमिशन से यू कैन विड्रॉ up to 75% of the entire PF amount. And in case the employment is up to 2 months, unemployment is up to 2 months, you can withdraw the entire amount. Moving forward, advances from the funds. अब फंड में से कुछ एडवांस आप ले सकते हैं क्या? यस, ले सकते हैं। यदि कोई बीमारी हो, कुछ कुछ केसेस में, इन सर्टेन केसेस, मैरिजेस, पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, abnormal conditions such as calamity, exceptional nature such as flood, earthquakes, riots, ये वाला केस हो, granted to the members affected by cut in the supply of electricity, electricity cut हो, उस केस में भी आप ले सकते हो। एडवांस टू members who are physically handicapped, उन members को भी ये पैसा मिल सकता है एज ए एडवांस जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है। सो ये 5 चीजें हैं जिस केस में आप एडवांस ले सकते हो। फर्स्ट इज इलनेस, मैरिज, पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन, abnormal conditions such as earthquake etc,
ग्रांटेड टू द मेंबर्स जिनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कट हुआ हो, और जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड। मूविंग फॉरवर्ड, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम सेक्शन 6A। तो चलिए देखते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम सेक्शन 6A में क्या लिखा हुआ है। Employee Pension Scheme Section 6A, the central government framed employee pension scheme for the purpose of providing for superannuation pension, retiring pension, permanent total disablement to the employees of any establishment or class of establishments to which the act applies, widow or widower's pension, children pension, orphan pension payable to the beneficiaries of such employees. Employee pension scheme कब एप्लीकेबल होगी? जब सुपर एनुएशन की स्टेज आ जाए, रिटायरमेंट की, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट मतलब अब एम्प्लॉय काम ही नहीं कर सकता, उसकी बॉडी परमानेंट टोटली डिसेबल हो चुकी है काम करने के लिए, विडो और विडोवर्स यदि कोई विधवा है तो उसके लिए जो पेंशन होती है, चिल्ड्रन का पेंशन है, और यदि कोई अनाथ है ऑर्फन पेंशन, तो इन केसेस पर सेक्शन 6A एप्लीकेबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को फ्रेम किया है इन लोगों के लिए। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कितना होगा? क्या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा? नो, हमने उस चार्ट में देखा था केवल एम्प्लॉयर 8.33% बेसिक वेजेस का, डियरनेस अलाउंस का और रिटेनिंग अलाउंस के समेशन का 8.33% एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ईपीएस। सेम यहीं पर है, पर contribution is not payable when the employee crosses 58 years। एक चीज की लिमिट है 58 years, contribution 58 years के बाद एम्प्लॉयर पे नहीं करेगा, सीजेस, उसके बाद आप ईपीएस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला इनने शॉर्ट में कि जो एम्प्लॉयर है वो बेसिक वेजेस प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस इफ एनी अगर पे है तो उसके टोटल का 8.33% कौन से अकाउंट में डालेगा? एम्प्लॉय पेंशन स्कीम अकाउंट में डालेगा। और ये ईपीएस कब कब मिल सकेगा? सुपर एनुएशन पे, रिटायरमेंट पे, विडो या विडोवर्स पेंशन पे, ऑर्फन्स पेंशन पे, डिसेबलमेंट के टाइम, तो इस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिट किया है। पर यदि ये जो एम्प्लॉय है जिसको ये सब मिल रहा है, ये एम्प्लॉय जो है इसकी एज 58 इयर्स क्रॉस हो जाती है, तो फिर उसको ये सब नहीं मिलेगा। मतलब पेंशन स्कीम कब तक है? केवल 58 इयर्स तक। अगर 58 इयर्स हो चुके हैं तो वो क्या हो जाएगी? सीज हो जाएगी, आगे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, पेंशन फंड। पेंशन फंड हैज बीन क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्कीम। पेंशन फंड शैल वेस्ट इन एंड एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल बोर्ड। इसको भी कौन देख रेख करेगा? सेंट्रल बोर्ड। पेंशन स्कीम में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में सारे वो मैटर्स लिखे हैं जहां पर पेंशन फंड्स की एप्लीकेबिलिटी होती है। शेड्यूल 2 क्या है वो डिटेल में आप गूगल सर्च करके पढ़ लीजिएगा, बहुत डिटेल था इसलिए मैंने कवर नहीं किया, इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना। अगर आप बेसिक चीजें जानते हैं नॉलेज के लिए उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम सेक्शन 6C। Employee Deposit Linked Insurance Scheme Section 6C, the central government made it. Okay, central government framed this scheme also. Central government framed this scheme on 1st of September 1976 it came into effect. It applies to all factories but not one except the tea factories of state of Assam. Wage ceiling limit under employee deposit linked insurance scheme has been increased from 600 to 15,000. Now the wage ceiling limit is 15,000 and insurance cover is for 6 lakhs. Okay, from 2.5 to 6 lakhs you will get the benefit. Next, employee deposit linked insurance scheme applies to all employees with a basic salary of 15,000. If an employee is earning minimum 15,000, this scheme is applicable to him. If the basic salary goes above 15,000 per month, the maximum benefit is 6 lakhs. Still he will get, but the maximum benefit he can get is only 6 lakhs, from 2.5 to 6 lakhs. There is no need for the employees to contribute to EDLI. Only the employer contribute, that to 0.5%. There is a bonus of 1,50,000 available under EDLI. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 20 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उनको ईपीएफ के लिए रजिस्टर करना है,
और जैसे ही वो ईपीएफ के लिए रजिस्टर करते हैं तो ईडीएलआई उन पर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाता है। देयर आर नो एक्सेप्शंस टू इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइडेड बाय ईडीएलआई, कोई भी एक्सेप्शन कैटेगरी नहीं है। एन एम्प्लॉयर कैन ऑप्ट आउट फॉर अनदर ग्रुप, क्या एम्प्लॉयर जरूरी है कि एम्प्लॉयर इस स्कीम को फॉलो करे? नो, he can opt out for another group of insurance also for employees, पर बेनिफिट्स ईडीएलआई से ज्यादा होने चाहिए, तभी वो इंश्योरेंस स्कीम कोई और ले सकता है, नहीं तो उसे एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम ही लेना पड़ेगा। एज पर द प्रोविजंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एम्प्लॉयर मस्ट बी 0.5%, जो कि हमने चार्ट में पढ़ा था, और मैक्सिमम ऑफ ₹75 पर एम्प्लॉय per month. If there is no other group of insurance scheme, the maximum contribution is capped at 15,000 per month. So ये हमारी basic limit है जो आपको याद करनी है from exam point of view. For calculation of EDLI, dearness allowance must be added to basic salary. अगर EDLI कैलकुलेट करना है तो बेसिक में DA जरूर ऐड करना, और रिटेनिंग अलाउंस की नेसेसिटी इनने यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं की, क्योंकि EDLI बोलता है कि डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस आर वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट, सेक्शन 7A, डिटर्मिनेशन ऑफ मनी इज ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर, मतलब यदि एम्प्लॉयर ने कुछ झोल किया है, घपला किया है, तो देखते हैं आगे क्या है। सेक्शन 7A provides that in case where a dispute arises regarding the applicability of this act to the establishment, मतलब यदि कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, कोई लड़ाई हो रही है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, तो जो अथॉरिटी है वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऑर्डर पास करने से पहले जो एम्प्लॉयर है उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो बताए कि उसने पेमेंट क्यों नहीं की। इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए जो अथॉरिटी है उनके पास सेम पावर होनी चाहिए जो कि कोर्ट के पास होती है, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर, जो कि केस को अंडरटेक करते हैं एनफोर्सिंग, और उनके पास जो जो मैटर्स होते हैं वो ये मैटर्स होने चाहिए। एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, मतलब जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उन केस में उनको प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, तो अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उनके खिलाफ केस भी हो सकता है। यदि कोई रिकवरी करनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स की नीड है, तो उसके लिए भी हम बोल सकते हैं उनको, मतलब अथॉरिटी बोल सकती है। कोई एविडेंस चाहिए उसके लिए भी, कमीशंस यदि विटनेस वगैरह हैं तो उसके लिए भी, मतलब सेम जैसा कोर्ट होता है वैसे ही पावर्स अथॉरिटी को मिलनी चाहिए, और एम्प्लॉयर सारे के सारी जो चीजें हैं वो बताएगा और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी मिलेगी। नेक्स्ट, where employer or employer any other person required to attend the inquiry fails to attend such inquiry, the authority shall decide the case ex parte, मतलब कि यदि कोई एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और वो केस के टाइम पर ही प्रेजेंट नहीं है, तो अथॉरिटी क्या करेगी, जो इंसान प्रेजेंट है उसके हित में फैसला सुना देगी एंड पास ऑर्डर ऑन द बेस ऑफ अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स पुट फोर्थ बिफोर हिम, जो भी उनके सामने उस समय पे होगा वो उसके लिए फैसला सुना देंगे, वो उस पार्टी का वेट नहीं करेंगे क्योंकि ये उसकी गलती है कि वो प्रेजेंट नहीं हुआ, चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉय हो। The employer within 3 months from the date of communication of such order may apply to the authority to set aside the ex parte order, showing that there are sufficient causes for not enabling him to attend the hearing. यदि employer किसी कारणवश उस केस की सूट में नहीं आ पाया जब वो केस चल रहा था, पर और एम्प्लॉय के हित में कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तो अब बाद में वो 3 महीने के अंदर अंदर रिव्यू ऑर्डर कर सकता है कि मैं इस कारण से नहीं आ पाया था और ये बहुत ही एक्सट्रीम इमरजेंसी थी, तो अगर कोर्ट को लगता है कि उसकी इमरजेंसी जस्टिफिएबल है तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर को साइड कर देंगे और फिर से रिव्यू होगा पूरा ऑर्डर। इफ द अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड, यदि उनको लगता है कि हाँ एम्प्लॉयर के पास सच में जेन्युइन रीजन था कोर्ट की प्रोसीडिंग अटेंड न करने का, तो वो इस एक्स पार्टी ऑर्डर मतलब एम्प्लॉय के हित में जो उन्होंने फैसला सुनाया था उसको अलग हटा देंगे और एक नई डेट इंक्वायरी की फिर से नई डेट करेंगे जिसमें वो नई तरह से फैसला लेंगे। पर एम्प्लॉयर को कितने महीने में बताना है, 3 महीने में, यहाँ पे 3 months, within 3 months he has to tell. Next, review order 7A, रिव्यू ऑर्डर अंडर सेक्शन 7A। 7B बोलता है कि कोई पर्सन अग्रीव्ड है, मतलब वो उस केस से खुश नहीं है, तो वो रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है, और वो ये भी बोल सकता है कि मेरे पास सबूत हैं, उसको सबूत लाना पड़ेगा और वो उस समय नहीं पेश कर पाया था जब पहले ऑर्डर चल रहा था, कोई मिस्टेक हो गई थी उससे,
कोई अपेरेंट फेस रिकॉर्ड हो गया था, या फिर कोई सफिशिएंट रीजन हो जिससे उसको ऐसा लगता है कि मुझे ये केस को फिर से वापस लाना है, तो वो जो पर्सन है जिसके साथ बुरा हुआ है, जो अग्रीव्ड है, वो फिर से रिव्यू करवा सकता है पूरे के पूरे केस को। जिस भी ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया था 7A में, उसके पास जाके वो पूरे केस का रिव्यू ऑर्डर मंगा सकता है। Such officer may also on his own motion review his order if satisfied necessary to do so on such any ground। अगर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि रिव्यू करना नेसेसरी है तो उसे रिव्यू करना पड़ेगा। यदि ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है रिव्यू का, तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है कि मैं रिव्यू नहीं कर सकता, क्योंकि कोई आपके पास जो भी आप बोल रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ एस्केप्ड अमाउंट। Section 7C provides that officer can reopen the file within 5 years from the date of order passed under Section 7A, 7B if he has reason to believe that by reason of omission or failure on the part of employer to make any document or report available or to disclose fully and truly all the material facts of any amount so due from the employer for any period he has escaped his notice, the officer may pass appropriate orders redetermining the amount ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इसमें यह बोल रहे हैं कि 7A और 7B में जो ऑर्डर पास हुआ था उसके 5 साल के अंदर उस डेट से 5 साल के अंदर यदि ऑफिसर को ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयर ने जानबूझ के ये रिपोर्ट्स, ये जो एम्प्लॉयर थे उसने डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट अवेलेबल नहीं कराई या ट्रूली सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए और उस चीज से वो एस्केप हो गया, तो वो जो अमाउंट उस टाइम के लिए ड्यू था वो उसके लिए ऑफिसर जो है ऑर्डर पास कर सकता है कि उस अमाउंट को आप पे करिए। किसको बोल सकता है? एम्प्लॉयर को पे कर सकता है। कितने साल में? जैसे मान लीजिए ऑर्डर अभी आया 2020 में, तो 2025 से पहले ऑफिसर कर सकता है ये चीज कि उसके पास वापस जा सकता है, वापस केस रीओपन हो सकता है। ओके। नेक्स्ट 7D, एक एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट ऑफ ईपीएफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। एक ईपीएफ अपीलेट ट्रिब्यूनल होगी जिसमें सारी की सारी अपील जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पास करेगी और एनी अथॉरिटी अंडर सेक्शन 7A, 7B या 7C। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या करेगी? सारी पार्टीज जो भी अग्रीव्ड है, किससे? अथॉरिटी से, सेंट्रल बोर्ड से, या जो भी पहले 7A, 7B में और 7C में जो भी अथॉरिटीज थी, तो जो भी पार्टीज ना खुश हैं वो उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी और डिसाइड करेगी, कंफर्म करेगी, मॉडिफाई करेगी या फिर जो भी मैटर है उसकी एन्यूलिंग करेगी और फिर से केस को रेफर बैक करेंगे और अथॉरिटी ने जो भी ऑर्डर पास किया है और ट्रिब्यूनल को जो सही लगता है, ट्रिब्यूनल क्या करेगा? उस गलती को सही कर देगा और रिकॉर्ड करेगा विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपील ऑर्डर। जब से ट्रिब्यूनल के पास अपील गई उसके 5 साल के अंदर ट्रिब्यूनल को उस गलती को रेक्टिफाई करना है, क्योंकि गलती अथॉरिटी से हुई है, क्योंकि अथॉरिटी किसने अपॉइंट की थी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो अब ट्रिब्यूनल को वो सारी चीजें सही करनी पड़ेंगी जो कि अथॉरिटी से गलती हुई है। नो अपील बाय एम्प्लॉयर शैल बी एंटाइटल्ड, पर जो एम्प्लॉयर है उसको यदि अपील करनी है ट्रिब्यूनल के पास तो उसको 75% ऑफ अमाउंट जो है वो जमा करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ट्रिब्यूनल उनका केस लेगा ही नहीं unless he has deposited 75% of amount due from him. Tribunal may for reasons to be recorded in writing waive and reduce the amount. ट्रिब्यूनल इस अमाउंट को थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकता है अगर उसके पास सफिशिएंट रीजंस हो। नेक्स्ट, अब बात आती है पेनाल्टी की। यदि किसी ऑफिसर ने या फिर ट्रिब्यूनल ने या फिर कंपनी ने या फिर फर्म ने या फिर किसी भी इंडिविजुअल ने, एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉय ने फॉलो नहीं किए इस लॉ के प्रोविजंस, तो क्या लगेगी? पेनाल्टी लगेगी। लॉ का जो हैमर है वो आपके ऊपर आके गिरेगा और पेनाल्टी आपको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि गलती हुई है। अगर एम्प्लॉयर ने पैसा नहीं दिया तो उसको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। यदि एम्प्लॉय फ्रॉड पर है और फालतू के केस कर रहा है तो उसे पेनाल्टी देनी पड़ेगी। अथॉरिटी फ्रॉड कर रही है तो वो पेनाल्टी देंगे। अब कौन कैसे क्या पेनाल्टी दे रहे हैं, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 provides that for the purpose of avoiding any payment, whoever knowingly makes or causes to be made any false statement or false representation shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with a fine 5,000 or with both। यदि कोई पार्टी है वो पेमेंट नहीं देना चाहती और जानबूझ के गलत गलत स्टेटमेंट कर रहे हैं और गलत गलत रिप्रेजेंटेशंस लिख रहे हैं, उनको
1 साल तक की जेल या फिर 5,000 या फिर 1 साल तक की जेल और 5,000 दोनों चीजों की पनिशमेंट मिल सकती है। उनको जमा करने पड़ेंगे 5,000 और 1 साल की जेल भी हो सकती है या दोनों में से कोई एक भी, क्योंकि वर्ड लिखा है और। सेक्शन 14(1)(a provides that an employer who contravenes or making default in complying with the provisions of section 6 as it relates to the payment of inspection charges, administrative charges, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years, but which shall not be less than 1 year, and a fine of 10,000 in case of default of the payment of employees' contribution, which shall not be less than 6 months, and a fine of 5,000 in any other case. क्या बोल रहे हैं इसमें, यदि कोई एम्प्लॉयर है और वो डिफॉल्ट कर जा रहा है, मतलब वो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, कंट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली पे नहीं कर रहा, इंस्पेक्शन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पे नहीं कर रहा, तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है। पर उसके अंदर भी 2 केसेस हैं। तो यदि उसने 1 साल के अंदर अंदर तक पे नहीं किया तो ये जो चीज है फाइन लग सकता है 10,000 का। पर यदि 6 मंथ्स का केस है और ये जो ऊपर वाला केस था इसमें एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन में भी डिफॉल्ट हुआ है, तब 10,000 फाइन है। और यदि और कोई केस है और 6 मंथ्स के अंदर अंदर तक भी चार्जेस वगैरह पे नहीं हो रहे हैं तो फिर 5,000 का अमाउंट उसको देना पड़ेगा। ठीक है। प्रोवाइड्स दैट एम्प्लॉयर हु कंट्रावीन्स इन मेकिंग डिफॉल्ट एज इट रिलेट्स टू द पेमेंट, अगर उसने इंस्पेक्शन चार्जेस और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस की पेमेंट नहीं की तो 10,000 का फाइन इन केस एम्प्लॉय हैजंट कंट्रीब्यूटेड, एंड इन एनी अदर केस 6 मंथ्स का केस है तो 5,000 रुपीज का फाइन लगेगा। नेक्स्ट 14(1)(b employer who contravenes or makes default in complying with the provision of section 6C। क्या था सेक्शन 6C? एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें एम्प्लॉयर को 0.5% जो है वो पे करना था टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन। shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year, but which shall not be less than 6 months, and shall also be liable to a fine which may extend to 5,000. Taking another case, section 14 subsection 2, subject to the provisions of this act, pension scheme or insurance scheme may provide that any person who contravenes or makes default in complying with any provision thereof shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year, or with a fine which may extend to 4,000, or with both. Section 14 subsection 3 provides that whoever contravenes in making the default, अगर कोई भी whoever contravenes in making the default in complying with any provision, कोई भी provision में कोई भी default हुआ हो, condition subject to which exemption of granted shall, if no other penalty is elsewhere provided by under this act, such contravention or non-compliance be punishable with imprisonment which may extend to 6 months, but which shall not be less than 1 month। 1 to 6 months की imprisonment होगी, plus साथ साथ में 5,000 रुपए का फाइन भी होगा। So that's all for penalties. Thanks for watching this lecture. Kindly subscribe to my Telegram channel. Why I am telling you to subscribe my Telegram channel? Because I give notes there. Plus, I provide for all the doubts and I make you practice questions also. For which course? CMA Inter Law course or CS Executive Law course. So please subscribe to the Telegram channel. Link is given in the description box. If you are new to my channel and haven't subscribed my YouTube channel also, please do subscribe, like and share. Thanks for watching.